Hello students, welcome back. Today we are going to start the MCQs of chapter number 1, Python revision 12. So we are going to discuss the MCQs given in the Sumita Arora book. The first question is, which of the following is an invalid variable? We have learned in the chapter that there are some rules for naming the variables, that is, they can either start with a digit or an underscore, and no special character can be used in this except underscore, and any variable name or identifier cannot start with a digit. So here we can see that we have some options: my, day, underscore, 2. So here underscore is there and it is starting with a digit, so this is valid. Next is second underscore day, it is starting with a digit, it is invalid. It is starting with a letter, so this is valid. Now C part is day underscore 2, it is starting with the letter underscore is there, so this is also valid. And here the starting character is underscore, which is also allowed, so the invalid variable is option number B, second underscore day. Next question is, which of the following is not a keyword? Eval, assert, non-local, pass. So we have learned that in order to check the list of keywords in Python, we have to just write some command, that is import keyword print keyword dot kw list. Let us move to the shell and we write here the command import keyword and print keyword dot kw list. As soon as you just press the enter key, it will give you the names of all the keywords. Now let us check our question. It is saying eval, assert, non-local, pass. So let us check which keyword is not there. So here we have assert, we have this assert. Then we have next one is non-local, which is also there, pass, which is also there. So these three are our keywords except the one eval, which is not there in the list of the keywords. So our correct answer is eval. So here we will get the answer, that is eval. Next, third question says which of the following cannot be a variable. So वेरिएबल के लिए हमारे पास रूल होता है कि वेरिएबल हमारा कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता. तो इसमें से आपके कीवर्ड कौन कौन से हैं? इन है और इनिट है, जो कि आपके कीवर्ड्स हैं. इनिट को आप आगे पढ़ेंगे, तो इट और ऑन जो है वो आपके वेरिएबल हो सकते हैं. दीज कैन नॉट बी द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप. हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं कौन कौन से? इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स और क्लास. क्लास इज नॉट अ कोर डेटा टाइप, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हाउ वुड यू राइट x रेज टू द पावर y इन पाइथन एज एन एक्सप्रेशन. आप पाइथन में x रेज टू द पावर y को कैसे लिखेंगे? और हमें पता है उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जिसे हम सिग्निफाई करते हैं 2 स्टार से. तो x दिस ऑपरेटर, y दिस इज रॉन्ग. x exponential operator y, this will be the correct answer. Next is, what will be the value of the expression 14 plus 13 modulus 15? Now this is an expression and it consists of the two operators. एक तो आपका modulus है इसमें और एक आपका plus symbol है. And according to the precedence of the operators, हमें पता है कि जो modulus operator होता है इसकी precedence ज़्यादा होती है. तो पहले हम दोनों में से किसे solve करेंगे? 13 modulus 15 को solve करेंगे. जब हम 13 मॉडुलस 15 करेंगे तो आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या देता है? रिमाइंडर. 13 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? ऑफ कोर्स 13. एंड देन यू से 14 प्लस 13, it will give you the answer as 27. So the correct answer is 27. Next is evaluate the expression a modulus b float division operator a. So out of this modulus and the float division, किसकी precedence ज़्यादा है हमारी? Right, modulus has the higher precedence. So here we will solve a modulus b. So a modulus b is 16. 16 modulus 15. What will be the answer? 1. And 1 float division operator a. What will be the answer? 1 को जब हम 16 से divide करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में. तो आपको पता है कि फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर में जब भी हमारा क्या आता है? इट गिव्स द आंसर इन द इंटीजर पार्ट ओनली. सो दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी 0. ठीक है. और अगर यहाँ पे फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर के प्लेस पे आपका सिर्फ
डिवीजन ऑपरेटर होता उस केस में आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आता। लेट अस सी इट वंस। पाइथन में देखते हैं इसको। a is 16, b is 15। हमने कहा a is 16 and b is 15। हमने यहाँ पे किया a मॉडुलस b फ्लोर डिवीजन a। तो यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है 0। अब अगर हम a मॉडुलस b को पहले सॉल्व करें, a मॉडुलस b, तो यहाँ पे आपका पहले क्या आएगा 1, यानी कि आप 16 को 15 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका बचा 1। नाउ वी से 1 and floor division 16 because the value of a is 16। और अगर आप 1 को 16 से नॉर्मल डिवाइड करें तो उसका क्या आंसर आता है आपका 0.0625। तो इसमें फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डेसिमल से पहले का पार्ट लेता है, तो इसमें आपका सिर्फ 0 रहेगा। सो दैट इज व्हाई 0 इज द करेक्ट आंसर, राइट। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू int 13.25 प्लस 4/2। तो यहाँ पे भी हम टू ऑपरेटर्स अगेन, एक प्लस है और एक आपका डिवीजन ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व करेंगे। तो जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आंसर आएगा यहाँ पे 4 divided by 2 is 2.0। Just remember that this division operator gives us the answer in the floating point form, so the answer will be 2.0। So 13.25 plus 2.0, 13.25 plus 2.0 gives us the answer as 15.25। अब आंसर हमारा आया 15.25, लेकिन आप देख रहे हैं कि सामने इसके इंट फंक्शन लगा हुआ है, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ओनली 15। दैट इज इट विल टेक द नंबर विच इज बिफोर द डेसिमल पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन 8/4/2 विल इवैल्यूएट इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, बोथ आर द डिवीजन ऑपरेटर्स। अब हमें इसमें ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से इवैल्यूएट होगा। इट विल बी इवैल्यूएटेड इन द फॉर्म व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इस केस में आप चेक करिए कि फर्स्ट केस में हमारे जो ब्रैकेट्स हैं वो 4 और 2 के बीच में लगे हुए हैं, और सेकंड केस में जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो 8 और 4 के साथ लगे हुए हैं। और जब भी हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है वो कहाँ से होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। तो पहले 8 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, whatever will be the answer that will be divided by 2। So the B part is the correct answer। Next is which among the following list of operators has the highest precedence। हमने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में पढ़ा है these operators, और इन सब में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारी किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट वी हैव इज which of the following expression results in an error। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फ्लोट, दिस इज 12 इज अ स्ट्रिंग, here it will come like this। 12 के आगे आपका यहाँ पे this is a inverted comma, and after that we have the value as int 12 float 12.5 int 12.5। let us check this how it will give us the output। सबसे पहले हमारे पास है float 12, तो यहाँ पे हमने लिया float और अंदर हमारे पास string है that is 12। तो अभी हमने इसको चेंज करना है, float में क्या आंसर आ गया 12.0। इसके बाद हमने लिया int और इसका हमने किया 12। अब इसको करते हैं तो इसका आंसर फिर क्या आ गया 12 आ गया, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग को इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया 12.0 और इसको इसने कर दिया इंट में कन्वर्ट। अब हम कहते हैं फ्लोट 12.5। अब ये देखो आपकी इसमें जो अंदर वैल्यू है वो ऑल दो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, लेकिन अगर हम विदाउट कोट्स जो है इसको देखें तो ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो इसके ऊपर जब फ्लोट फंक्शन लगाया गया तो आपका आउटपुट कितना आया 12.5। अब अगर मैं इसके बाद इंट फंक्शन लगाती हूँ, आई सेड कि इंट और यहाँ पे हमने दिया 12.5 and then we check the output। oh there is some mistake, wait a second। so here we write down int one second, here we will write down int and in the bracket we will write down 12.5। so here we have int int 12.5।
Now here you can check that जब हमने यहाँ पे एंटर की को प्रेस किया, it is showing us a value error, क्योंकि अंदर ये जो वैल्यू है वो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इस पर हमने कोट्स लगाए हैं तो स्ट्रिंग है। अब इसको वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर फंक्शन जो है वो सिंपली क्या करता है, वो फ्लोट वैल्यू के ऊपर इस तरह से काम नहीं कर सकता, ऑल्दो इट इज अ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ द कोट्स। Okay, so this cannot be converted into the integer value, that is why it is showing an error. So for this, what will be our correct answer? That is option number D, that is int 12.5, right? इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which of the following statement prints the shown output below? हमें आउटपुट में क्या चाहिए, hello slash example slash test dot txt, और ये जो स्लैश है आपके, ये हमारे होते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है, हेलो एग्जाम्पल टेस्ट txt, ये आउटपुट हमारा कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन इनको चेक करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी हमें इस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए, तो अगर आप नॉर्मल एक स्लैश लेके करते हैं, जैसे यहाँ पे स्लैश ई है, ये स्लैश टी है, स्लैश के साथ कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसका पाइथन में अपना मीनिंग हो सकता है, तो हो सकता है वो आपको ये आउटपुट ना देके कुछ और आउटपुट दे। हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने लिया पाइथन, और यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस वन, हेलो स्लैश सो हियर वी हैव हेलो, इसको हम एक बार कमेंट बना देते हैं, हेलो स्लैश एग्जाम्पल टेस्ट डॉट txt। तो यहाँ पे जो हमने इसको कराया और हम इसे अगर रन करा के चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेलो स्लैश एग्जाम्पल, टी आ नहीं रहा, गैप आ रहा है 5 कैरेक्टर्स का, est.txt। तो इसका क्या मतलब है कि आपका यहाँ पे जो स्लैश टी है वो एक स्पेशल काम कर रहा है पाइथन के अंदर, दैट इज इट इज गिविंग द स्पेस। तो जो हमें आउटपुट चाहिए, दिस वन, दिस कैन नॉट कम फ्रॉम दिस वन। सेकेंड ऑप्शन में आपका है कि यहाँ पे आपके दो स्लैशेस लगे हुए हैं। अब हम इससे चेक करते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है। अब आप यहाँ पे देखो, आपका जो आउटपुट है जो रिक्वायर्ड चाहिए वो आपका किससे आ रहा है, टू ब्लैक स्लैश से आ रहा है। ये कैसे आया, क्योंकि जब भी हमें किसी भी आउटपुट के अंदर एक स्लैश चाहिए होता है, तो उसको करने के लिए हमें दो स्लैशेस लगाने पड़ते हैं बिटवीन द वर्ड्स विच आर टेकन एज द टेक्स्ट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या है, स्लैश के बाद इन्वर्टेड कोमा है, और यहाँ एग्जाम्पल के बाद स्लैश में इन्वर्टेड कोमा है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। लेट अस चेक, गो बैक टू द पाइथन अगेन। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट्स पुट कर दिया, और यहाँ पे भी हमने डबल कोट्स को पुट कर दिया। इट इज डबल कोट्स नॉट डबल कॉमा, डबल कोट्स हमने यहाँ पे पुट किया, एंड दैट आफ्टर दैट वी गेट द आउटपुट एज सी हियर। डबल कोट्स आर कमिंग हियर, डबल कोट्स आर कमिंग हियर। सो अगर हमें सिंगल कोट या डबल कोट अपने टेक्स्ट में प्रिंट कराना हो, तो उसे हम स्लैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तब स्लैश के प्लेस पे हमारे वो कोट्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हेलो के बाद आपके डबल कोट्स हैं, और एग्जाम्पल के बाद आपके डबल कोट्स हैं। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए, हमने ये डबल कोट्स को यहाँ पे लगे रहने दिया और स्लैश को इसके बाद लगाया। सेम इज द केस विद दिस वन, हमने इसको हटा के यहाँ पे लगा दिया। अब अगर हम इसके आउटपुट को चेक करें, तो यू कैन जस्ट सी व्हाट इज द आउटपुट कमिंग। इट इज सेइंग अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर द लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। सो हियर यू कैन सी, ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे बंद हुए, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुए, यहाँ बंद हो गए, लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट है that should be in the inverted commas, which is not coming, so error is coming, वो रन ही नहीं हो पाएगा। इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर है, that would be which one, जिसमें आपके टू बैक स्लैशेस आर देयर, that is your option number B, right? So this is our the correct answer here, option number B. Next question is, which value does input function return? So we know that input function returns the value of the string type. Then which two operators can be used on numeric values in Python? We know that on numeric values we use arithmetic operators. So arithmetic operator is the modulus operator and the plus operator. At the rate is not any operator, and hash, these are the special characters. Next we have is, which of the following four fragments will yield the following output? We want these three words Ina, Meena and Dika in the three different lines. Now there are
4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन। सबसे पहले कह रहा है प्रिंट ईना देन मीना देन डीका, और यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है स्लैश एन आ रहा है। और आपको पता है जब भी हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखते हैं तो उस केस में अगर हमें मल्टी लाइन में आउटपुट चाहिए तो हमारा हर लाइन के बाद एक स्लैश यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। इसके बाद आपका बी पार्ट है प्रिंट ईना मीना डीका। तो यहाँ पे देखिए 3 कोट्स यहाँ हैं और 3 सिंपल कोट्स यहाँ हैं, तो क्या इससे प्रिंट होगा? एंड सेम इज द केस विद दिस वन, जैसे ए पार्ट में स्लैश नहीं है वैसे ही बी पार्ट में भी स्लैश नहीं है, तो ये इस केस को मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं लेगा। इस ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अब हम सी पार्ट पे आते हैं। इट सेज ईना स्लैश एंड मीना स्लैश एंड डीका, और आपको पता है स्लैश एंड फॉर द न्यू लाइन कैरेक्टर इन पाइथन। लेट अस चेक हाउ इट इज डन इन पाइथन। हम अपने पाइथन में आते हैं वापस, यहाँ से हमने ये चेक किया कि दिस इज आवर फाइल, और यहाँ पे अब हम इसे एज अ कमेंट हटा देते हैं और इस लाइन को हम अपना कमेंट बना देते हैं, प्रिंट ईना मीना एंड डीका। तो यहाँ पे आप देखिए जब आप इसे रन करेंगे तो रन करने पे आपका क्या आउटपुट आ रहा है? इट सेज एंड ऑफ द लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि यहाँ पे स्लैश होता तब ये इसको रन कर पाता। अब अगर हम यहाँ पे स्लैश लगा दें तब इसे रन करें तो तब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। अब देखिए स्लैश होता तो हमारा आउटपुट जो है दैट वुड हैव बीन प्रॉपर, दैट इज ईना देन मीना देन डीका। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू डू। अच्छा, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है उसमें आपका क्या है, स्लैश एन हटाया हुआ है इन द डी पार्ट, दिस थिंग एंड दिस थिंग, जस्ट चेक दिस वन। और यहाँ पे आपके जो है दैट विल बी डबल कोट्स, सो विल जस्ट रिमूव वन ऑफ द कोट्स। अच्छा, अब आप डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में सिंपली दिया हुआ है ईना देन मीना देन डीका, जस्ट चेक इट इन पाइथन वंस। यहाँ पे आपके पास है ईना इन द सिंगल कोट्स देन मीना एंड देन डीका। तो यहाँ से जब आप इसे रन करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए इसका क्या आउटपुट आता है। इट इज सेइंग एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्टिल लिटरल, सेम जो आपका ए पार्ट में था वही आपका बी पार्ट में आया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज ये वाला ऑप्शन ईना मीना एंड डीका, जो कि आपका सेम लाइन में है। हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे ले लिया और इसे हम वापस ले आते हैं इन द सेम लाइन एंड दिस आल्सो इन द सेम लाइन। अब जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो इस केस में व्हेन यू विल रन दिस, व्हाट आउटपुट इट विल शो यू, इट विल शो यू दिस आउटपुट। ये आपका सेम लाइन में आएगा, लेकिन हमें आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, एक लाइन में हमें चाहिए, मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में चाहिए। यहाँ पे हमारे पास हुआ स्लैश एन और यहाँ पे भी स्लैश एन। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो अब हमारा आउटपुट आ गया, फर्स्ट लाइन देन सेकेंड लाइन एंड देन थर्ड लाइन। तो अगर आपको आउटपुट इस फॉर्म में चाहिए विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू यूज स्लैश हियर, if the slash n you are using you can use slash here for the multi-line string, or you can use also slash here in this one, that is मीना मीना एंड डीका। यहाँ पे आप स्लैश को यूज कर सकते हैं, या फिर the correct option out of these can be this one where this option is coming, that is यहाँ पे आपने एक ही लाइन में स्ट्रिंग दी हुई है और यहाँ पे आपने स्लैश n को यूज किया हुआ है। So this will be my correct answer. Okay. Next question is which of the following is a valid arithmetic operator in Python? अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं जिसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन मॉडुलस इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं? सो दिस इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज पार्ट ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन मार्क is not any operator, less than is my logical operator, sorry relational operator, and is my logical operator. So these were the MCQs which were of chapter number 1 we have discussed. I hope these all are clear to you. In case you have any doubt in any of the questions, you can ask in the comment section. Thank you students. Have a good day.